Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. So there was a scholarship test that was conducted by Doon Officers Academy. Today we will be discussing the solution of that particular test. Now if you will look at the questions, I hope you have the question paper with you and we will be discussing the answers for that. So we will start off with the first question, English portion. First question is, choose the word which is most nearly the same in meaning as the word given below. So in this question they are asking the synonym for the question that is given to you, right? What are synonyms? Similar meaning word. And as you have been told many a times, जब भी हम synonym की बात करते हैं, that means the word which is similar to, right? Exact same मतलब जरूरी नहीं है, but ऐसा कोई भी word आपको choose करना है जिसका मतलब जो है लगभग उसी के जैसा है जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया. So the first question is, the term or the word is austere. What does the term austere means? Options की अगर हम बात करें, options में आपको दे रखा है proud, rigorous, revered and very poor. What does the term rigorous means? Rigorous का मतलब होता है जब आप कोई चीज जो है when you are doing it in a very thorough manner, right? When something is being done in a very thorough manner, completely या फिर बहुत ही गंभीर तरीके से किया जाए, that is rigorous. The term revered का मतलब है when somebody is revered, that means they are greatly respected, right? So you hold them in high value, right? आप उनको बहुत मानते हो. So someone who is revered means that is respected. Austere की अगर हम बात करें, austere का simple मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही खराब कंडीशन में है, something which is very bad. उसके अगर कंडीशंस की बात करें बहुत ही खराब कंडीशन में है, there we use a term austere that simply means something which is very bad. So there is a word that is given to you which is very poor. So for the first question the answer should be the D part, that is very poor. Second question पे आते हैं. Second word जो आपको दे रखा है that is enigmatic. Enigmatic का मतलब है something which is very mysterious, right? So second word था आपका enigmatic. एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो क्या है बहुत ही मिस्टीरियस है, राइट? सो फॉर देयर वी यूज अ टर्म एनिग्मेटिक. नाउ इफ यू विल लुक एट द ऑप्शन, फर्स्ट इज पिटी. नाउ स्पेलिंग की अगर हम बात करें, द स्पेलिंग इज PITTY, राइट? कई बार इसको हम PITY भी लिखते हैं. सो आप दोनों में से जो भी स्पेलिंग लिख रहे हो मतलब दोनों का सेम है. When you pity someone, you sympathize with them, you feel sorry for them. So the term pity means you sympathize with them. Then the second term is puzzling. कोई भी चीज अगर puzzling है, that means anything which is puzzle, जो जिसको समझने में क्या है कि something which is difficult to explain, right? Similarly, complicated का भी मतलब क्या है? It is very much close to the word puzzling. Complicated means which is difficult to understand. कोई चीज अगर कॉम्प्लिकेट है उसको समझने में, उसको आपको बेहतर तरीके से समझने में क्या है मुश्किलें आती हैं. सो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. एंड लास्ट इज इल्यूसिव. सो फॉर द टर्म एनिग्मेटिक द आंसर शुड बी डी, इल्यूसिव. इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? समथिंग. इल्यूजन का मतलब क्या है? जो चीज है और जो असल में है, राइट? व्हाट आर यू सीइंग? स्पेशली जब आप मैजिक वगैरह देखते हो तो जो चीजें सामने से हो रही हैं और जो एग्जैक्टली वो कर रहे हैं उनमें फर्क है, राइट? दे क्रिएट अ इल्यूजन, राइट? सो ऐसी कोई भी चीज व्हिच इज हिडन और समथिंग व्हिच इज मिस्टीरियस, वी यूज अ टर्म इल्यूसिव फॉर दिस. सो एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? इल्यूसिव. नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म. दिस इज बरसेक. दिस इज बरसेक. बरसेक का व्हेन यू गो बरसेक दैट मींस आप इतने ज्यादा गुस्से में हो, यू आर सो फ्यूरियस दैट यू टर्न वायलेंट. कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को ना, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वर्बली देयर एंगर, सो दे एंड अप हिटिंग समवन, राइट? सो दे हैव गॉन बारसेक. बारसेक का मतलब है आप इतने गुस्से में हो, आप इतने ज्यादा यू आर सो एंग्री, यू आर सो फ्यूरियस दैट यू बिकम वायलेंट, राइट? एंड यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. कई बार आपको इतना गुस्सा आ जाता है, आप कुछ ऐसी चीजें कर देते हो, चीजें तोड़ दी एंड यू रियलाइज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को ये चीज अब होती है ना कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो बारसेक मीन्स व्हेन यू आर रियली फ्यूरियस टू सच एन एक्सटेंट दैट यू बिकम वायलेंट, राइट? आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो. सो देयर वी यूज अ टर्म बारसेक. ठीक है, अब इसके ऑप्शंस क्या है? क्लेवर, हैप्पी, नॉइजी, वाइल्ड. Now the options that are given to you, आपके options जो है वो they are pretty simple options. तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? D part, that is wild. So for this the answer should be wild.
वाइल्ड कोई चीज क्या है जिसको आप टेम नहीं कर सकते हो, राइट, समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो बार्सिक का भी मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो इतने गुस्से में, इतनी फ्यूरियस है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now here you have to select the option based on the appropriate tense. Now many a times you have been told कि आप tense जो भी पढ़ रहे हो उसके आपको क्या जानना जरूरी है कि use कहाँ पे करना है. So this question was basically based on usage as well. Now the fourth question that is given to you is, it was only after she, then there is a blank, English that she dashed to make some foreign friends. Now here there is a cause and then there is a effect. है ना, कोई एक कंडीशन रखी गई है, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट है, राइट. सो द आंसर शुड बी इट वाज ओनली आफ्टर शी लर्नड इंग्लिश दैट शी वुड स्टार्ट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द आंसर शुड बी द बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी डैश दैट दिस पिक्चर डैश वर्थ at least $500. Now this particular statement should be in present tense only. तो present tense के options अगर आप देखेंगे, there is only one option which is in future tense, right? तो आप C eliminate कर सकते हो. Then the options A, B, D सब आपके क्या हैं? अच्छा, A option में first part of the option that is in present, लेकिन जो second half है आपका वो was है, right? तो आप A और C eliminate कर सकते हो. Now let's come to the option B and D. The options are have estimated / is. मतलब जो दो ब्लैंक दे रखे हैं, पहले वाले ब्लैंक में should be have estimated और सेकेंड वाले ब्लैंक में is आना चाहिए. We are estimating that this picture is worth at least $500. Now if you will put D as an option that we are estimating that this picture is worth at least $500. So going by the meaning of option D के अकॉर्डिंग जो मतलब बन के आ रहा है, that is कि हम अभी भी estimate कर रहे हैं. Whenever we talk about estimation, something that is already been done, है ना. आप कैसे कोई चीज प्रिडिक्ट करोगे कि मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उससे पहले आप मार्केट उसकी वैल्यू कितनी है कंपेयर करके ऑलरेडी आप एक एस्टिमेशन बना, एक एमआरपी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द बी पार्ट, दैट वी हैव एस्टिमेटेड दैट दिस पिक्चर इज वर्थ एट लीस्ट $500. ठीक है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? दैट शुड बी द बी पार्ट. हैव एस्टिमेटेड ये आपका किस में आना चाहिए था? प्रेजेंट टेंस में. नाउ देयर आर फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब एक ऐसे हैं जो आपके हमेशा से आरएमसी स्पेशली यदि उसकी बात करें तो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेजल वर्ब से, और इवन इफ यू टॉक अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमेशा से इसके क्वेश्चंस हैं. नाउ द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू इज, डू यू हैव अ फ्रेंड दैट यू कैन डैश. Do you have a friend that you can? What does the term confide means? सबसे पहले आपको confide का मतलब पता होना चाहिए. और phrasal verb क्या होते हैं? Phrasal verb का सिंपल मतलब है ऐसे कोई भी set of group of words जो आपके क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? फ्रेजल वर्ब दिया गया है. मतलब ऐसे फ्रेज जिसमें एक वर्ब जरूर होगा. ठीक है, तो इफ यू विल लुक एट द ऑप्शंस, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स. confide upon, confide on, confide in, confide out. यहां पे आपको ऐसा एक idiom चाहिए, ऐसा एक phrasal verb चाहिए. आपके कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप अपनी बातें कर सकते हो, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है या कोई भी सीक्रेट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. When you confide in someone, that means you share your secret with them. Everyone have at least one person जिसके साथ आप बात कर सकते हो. कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इफ यू नीड एनी ओपिनियन, या फिर मेनी अ टाइम्स हम कोई चीज कर रहे हैं, यू जस्ट नीड अ वैलिडेशन कि क्या ये सही है, राइट. सो वी नीड अ सेकंड ओपिनियन. तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सको, उसमें लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, वी यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज कन्फाइड इन, मींस यू हैव समवन टू टॉक टू. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप बात कर सकते हो, राइट. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 सी, मतलब कन्फाइड इन. द राइट फ्रेजल वर्ब इज कन्फाइड इन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यू हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर वीक्स, इट्स टाइम यू डैश ऑफ इट. स्नैप आउट, स्नैप इन, स्नैप्ड आउट, स्नैप ऑन. स्नैप का मतलब होता है उससे बाहर निकलना. ठीक है, so you have been depressed for weeks, it's time you snapped out, right? So for this question the answer should be the C part. Her voice dash a troubled tone. Now if you will look at this sentence carefully, आपको ये चीज पता चलेगी कि ये
मतलब जैसे जैसे उसने बात करनी शुरू की, ट्रबल टोन का मतलब है कि दैट देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, कुछ प्रॉब्लम है ना, कि जो उसको क्या कर रही है, परेशान कर रही है. सो दिस इज व्हाट द सेंटेंस मीन. अब उसके जरा ऑप्शंस पे आओ. टुक ऑफ, टुक ऑन, टुक ओवर, टुक इन. सिंपली बाय जस्ट चेंजिंग वन प्रीपोजिशन या एक वर्ड के चेंज से आपका पूरा फ्रेजल वर्ब का मतलब बदल जाता है. जैसे कि टुक ऑन का मतलब क्या है, कोई चीज आप एक्वायर कर रहे हो. अगर टुक ओवर की बात करें, मतलब दे टुक ओवर द पोजीशन, मतलब उन्होंने उस पोजीशन के ऊपर कंट्रोल किया. सो सिंपली बाय चेंजिंग वन वर्ड आप पूरा फ्रेजल वर्ब आपका बदल जाता है. राइट. टुक ऑफ का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें क्या है, निकालना. राइट. जैसे कि ही टुक ऑफ हिज जैकेट, तो उसने अपना जैकेट क्या है, निकाला. राइट. टुक ऑन का मतलब क्या होता है, आप कोई पोजीशन जब एक्वायर कर रहे हो या व्हेन यू एक्वायर समथिंग, देयर वी यूज अ फ्रेजल वर्ब दैट इज टुक ऑन. फिर है आपका टुक ओवर. टुक ओवर का मतलब होता है किसी का कंट्रोल लेना. अब सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे उसकी आवाज उन्होंने सुननी शुरू की या जैसे जैसे उसने बात आगे बढ़ाई, तब जाके उनको पता चला कि क्या है कि ट्रबल टोन का मतलब है, यू नो, सी विद ह्यूमंस वी अंडरस्टैंड इमोशंस. राइट. ह्यूमंस के साथ क्या है कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट. राइट. और जैसे जैसे आप लोगों के किस तरीके से हाउ दे मॉड्यूलेट देयर पिच, किस तरीके से वो अपनी आवाज से ही आप पहचान जाते हो कि वेदर समवन इज हैविंग एनी ट्रबल और नॉट. राइट. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे उसने बात करनी शुरू की वैसे वैसे आपको पता चला कि ट्रबल टोन मतलब देयर इज समथिंग नॉट राइट और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी टुक ऑन. क्वेश्चन नंबर 8, टुक ऑन मतलब यू नो, कई बार ये होता है कि आउटसाइड यू आर ऑल वेल बट वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, धीरे धीरे क्या होता है, यू गेट इमोशनल. तो यही से आपका सेंटेंस में बोला जा रहा है. Now let's move to question number 9. When he tried to balance his checkbook, he found that things just didn't. अब देखो, here the sentence is when he tried to balance his checkbook, है ना. अब जब आप भी चेकबुक आप लेते हो या जब भी आप टैली वगैरह कर रहे होते हो, लाइक मंथली एक्सपेंडिचर आपका कितना है या सेविंग्स कितनी हो गई, आपकी इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे जब भी आप क्या करते हो, लाइक सो द अमाउंट दैट वाज इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में जो अमाउंट था और लास्ट में आपने जितना खर्च किया, जितना सेव किया, जो भी आपने किया, तो एंड में वो क्या बनता है, एंड में आके द टोटल विल बी सेम, है ना. मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए आपने खर्च कर दिए किसी चीज में और बाकी सामान लेने में कम से कम आपका 50 रुपए का खर्चा हो गया, तो अब 50 रुपए बचे हैं. सो नाउ यू विल, इफ यू विल ऐड द एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हुआ, and your savings, that will give you your income जो starting में था, है ना. So similarly when he tried to do that, he found that things just didn't add up. Right. So for this the correct answer should be add up. मतलब जब आप सम कर रहे हो उन चीजों का, तो जो फाइनल सम आ रहा है वो क्या है, या फिर जब आप चीजें जोड़ रहे हो तो दे आर नॉट, वो फिट नहीं बैठ रही हैं. So for this the answer should be the B part, that is the things don't add up. So for question number 9 it should be B part, add up. Now let's move to the last question. After the tragic accident, Lily's mother had a nervous. See, this is a bit common phrasal verb, right? Especially अगर आपकी reading की habit है या if you watch, so you must have come across this particular phrasal verb. So for this the answer should be breakdown. नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, या फिर ब्रेकडाउन का अगर ब्रॉडर टर्म्स में समझे हम, सो दैट मीन्स फेलियर ऑफ समथिंग. नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि कई बार यू हैव we can say stored emotions, है ना. So now when the accident happened, when the tragic accident happened, she had a nervous breakdown, there was a complete breakdown, है ना. So for this the answer should be the B part. For 10th question the answer should be B, breakdown. ठीक है. ब्रेकअप का मतलब होता है व्हेन यू एंड अ रिलेशन, ब्रेकडाउन मींस फेलियर, राइट. सो सिंपली बाय चेंजिंग वन और द अदर वर्ड आपका पूरा फ्रेजल वर्ब का मतलब बदल जाता है. सो ट्राई टू फोकस अपॉन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. वोकैबुलरी, एज आई टोल्ड यू, यू मस्ट डेवलप अ रीडिंग हैबिट, है ना. आरएमसी की वोकैबुलरी जो अगर पूछे, सो दे आस्क यू अ गुड लेवल ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी है, इट विल कवर अप, बिकॉज वोकैबुलरी इज रियली वास्ट. So try to focus upon the root word and you will be able to understand. In fact, you will be able to answer many of the vocabs that you have never come across if you know the root word, right? So this was the
answer for the scholarship test that was conducted from classes 6 to 8, right? So thank you everyone and have a good day to you all.